Good morning to all of the students. Today we will continue the next chapter. We will discuss about the new chapter, classification of the plants and classification of plants. This chapter related topic we did earlier last year also. हम लोग ने लास्ट ईयर भी देखे थे ये टॉपिक के बारे में. हाँ, 8th स्टैंडर्ड में था ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. ये फर्स्ट चैप्टर ही था तुम्हारा. अमीबा, पैरामीशियम, ऑल दिस यू हैव सीन in the first chapter, Halophyta. So now kingdom Plantia we will look in this chapter. Subkingdom Gymnosperm and Angiosperm. Subkingdom Angiosperm. Now Gymnosperm, Angiosperm, this already you heard the name. And kingdom Plantia, जो हम लोग प्लांट बोलते हैं. तो in the kingdom Plantia we will see the different plant category. तो first see living organisms. Living organisms we are telling as a prokaryotic and eukaryotic. In the prokaryotic Monera are there. Monera means a single cell. A single cell we are telling, a single one. In the eukaryotic we are telling unicellular, multicellular. Unicellular they are telling in the protista, a single cell one we are telling. And multicellular that means a more than one cell. But in the multicellular also there are two different categories, with cell wall and without cell wall. In this with cell wall the plant consists of the cell wall, that is autotroph and heterotroph. In the heterotroph category we are telling Plantia. In the heterotroph category we are telling as a fungi. Fungi that means depending, fungus बोलते हैं हम लोग उसको. Now in the without cell wall that we are telling as an animalia. वो animalia के ग्रुप में आता है जहाँ पे cell wall नहीं रहते. Now how living organisms being classified? किस तरह से living organism classified करते हैं? तो there are 5 category, 5 kingdom, Monera, protista, fungi. This all we are telling as in a 5 and fungi. This are we are telling as in a 5 kingdom category. ये 5 kingdom category है जहाँ पे मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है और फंगी कैटेगरी आती है. जैसे कि तुम लोग ने ऊपर देखिए मोनेरा है, प्रोटिस्टा और फंगी कैटेगरी. नाउ ये प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक. तो दिस वाज डिस्कस इन द रॉबर्ट. ये किसने डिस्कशन किया था, प्रपोज किया था? रॉबर्ट विटेकर थ्योरी थी 1959 में उसने रखा था फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Now what are the secret of the kingdom Plantia? इसकी क्या सीक्रेट है हम लोग देखेंगे. That we are telling which impart this green freshness of our surrounding. What was the secret? बोल रहा है क्या सीक्रेट है जिसकी वजह से अपने सराउंडिंग ग्रीन रहती है. That we will see. How much diversity is there in this kingdom? What was the diversity is there that we also look it here. So let's see. The first kingdom Plantia we will look. What are the special features? Special cell बोलने that different Plantia cells from the animal cells. क्या डिफरेंस फीचर्स हैं कि जो प्लांट किंगडम्स प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में जो डिफरेंट बता देते हैं. इन द प्लांट्स वी हैव सीन दैट सेल वॉल आर देयर, बट इन द एनिमल दैट सेल वॉल इज नॉट देयर. दिस वाज द डिफरेंट थिंग्स दैट वी हैव सीन अबाउट. नाउ द ग्रुप ऑफ द ऑटोट्रॉप. ऑटोट्रॉप यू नो द प्लांट दैट मेक्स अ ओन फूड, वी कैन से ओन फूड्स विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट. तो इन द ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिजम्स यू विल सी यूकार्योटिक विद सेल वॉल. हाँ, ये यूकार्योटिक वाले होते हैं जिसमें सेल वॉल होता है. दिस इज़ द ग्रुप ऑफ द प्लांट. नाउ प्लांट हैव बीन ऑटोट्रॉफ. ऑटोट्रॉफ मैंने समझाया. ऑटोट्रॉफ क्या होता है? जो खुद से प्लांट बोलते हैं ना, खुद से फूड्स परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं. दैट दे आर टेलिंग मीन्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, फोटोसिंथेसिस, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. ये क्लोरोफिल के हिसाब से भी बोल सकते हैं हम लोग. तो वी विल डिस्कस अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो काम वी कैन से किंगडम प्लांटिया. किंगडम प्लांटिया आर द मेन सोर्स ऑफ द फूड. किंगडम प्लांटिया बोलते हैं ना, जो प्लांटिया बोलेंगे ये मेन सोर्स है फूड्स का लोगों के लिए. जो मेन बोलता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड्स. रिमेंबर फूड फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स अगर प्लांट रहेंगे तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव. तो ना बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू वी हैव टू क्लासीफाई दिस किंगडम. किस तरह से अपने को क्लासीफाई करनी चाहिए और क्या नेसेसिटी है इसमें, क्या मेन ज़रूरत है. द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द टिश्यू. अगर एब्सेंट बोलते ना, टिश्यू प्रेजेंट भी है एब्सेंट भी है. फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड द वाटर इज़ द मेन कंसिडरेशंस जो टिश्यू बोल रहा है इसमें. हाँ, द प्रेजेंस और एब्सेंट ऑफ द टिश्यू. अगर टिश्यूज़ कंडक्ट हो रहे फूड बोलते ना विद द हेल्प ऑफ द फूड एंड द वाटर, तो क्लासीफाई कर सकते बोलते ना, तो मेन प्लांट सर्वाइव करेगा, नहीं तो नहीं सर्वाइव करेगा. बट द फूड्स the animal we can say the plants are preparing their own food with the help of the sunlight, remember. And few of the plant they are depending on the other organisms also. कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो बैक्टीरिया खाते हैं, याद रखना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी फीड करते हैं उन लोग. नाउ डू द प्लांट बियर सीड्स. प्लांट सीड क्या बोलते हैं ना, प्लांट्स के अंदर सीड्स रहता है. इफ दे
डू डन बोलते ना, अगर करते हैं तो वेदर द सीड्स आर एनक्लोज इन द फ्रूट्स बोलते ना, वो फ्रूट्स सीड्स के अंदर रहते हैं, जो फ्रूट के अंदर सीड रहते हैं। देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिसके इनसाइड में सीड्स रहते हैं। हाँ, और नॉट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, अगर नहीं भी है तो उसके सीड्स कहाँ से आते हैं। फाइनली फ्रूट्स आर ग्रुप्स बोलते ना, जो फ्रूट्स हैं उसके ग्रुप्स डिपेंड करते हैं। दे आर डलिंग अपॉन द कोटलीडोन, जो कोटलीडोन बता रहे हैं इन द सीड्स। मोनोकोटिलीडोन, डाइकोटिलीडोन, वी आर डलिंग मोनो मीन्स सिंगल सीड्स, डाइकोटिलीडोन मीन्स मोर देन वन सीड्स। तो ना एट द हायर लेवल ऑफ द प्लांट बोलते ना, ज़्यादा एकदम हायर लेवल पे जाएंगे तो उसकी अलग अलग कैटेगरीज आती है ना। एग्जाम्पल यू विल सी द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, अगर प्रेजेंट है बोलते ना फ्लावर्स प्रेजेंट भी है एब्सेंट भी है, इसकी बात कर रहा है। फ्रूट्स एंड द सीड्स, फ्रूट भी रहते हैं और नहीं भी रहते सीड्स उसके अंदर। नाउ दे आर डलिंग, तो प्लांट आर क्लासीफाइंग इन द क्रिप्टोग्राम एंड फेनोग्राम। तो प्लांट वी कैन से क्लासीफाइंग इन द क्रिप्टोग्राम बोलते ना, क्रिप्टोग्राम में क्लासीफाई करते हो और फेनोग्राम में क्लासीफाई करते। अगर प्लांट के अंदर फ्रूट्स भी नहीं है, फ्लावर्स भी नहीं है, सीड्स भी नहीं है, तो देन वी आर क्लासीफाइंग प्लांट इनटू 2 ग्राम्स बोलते ना। प्लांट को हम लोग 2 तरह के क्लासीफाई करते हैं, फेनोग्राम एंड क्रिप्टोग्राम। नाउ डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सीड्स आर एनक्लोज, अगर सीड्स फ्रूट बोलते ना, फ्रूट के अंदर अगर सीड्स है और नॉट, हाँ, तो फेनोग्राम आर क्लासीफाइड एज जिम्नोस्पर्म बता रहा है। क्या बता रहा है, अगर फ्रूट्स के अंदर डिपेंडिंग वेदर द सीड्स बोलते ना, जो सीड्स हैं फ्रूट के अंदर है कि नहीं है, ऐसा बता रहा है। वेदर इनसाइड विद इन अ फ्रूट और आउटसाइड द फ्रूट बता रहा है, और नॉट फ्रूट के अंदर के बाहर, ऐसा बता रहा है। तो फेनोग्राम 2 तरह का क्लासीफाई करते हैं, दैट वी आर टेलिंग एज एन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। हाँ, देन वी आर टेलिंग एज एन जिम्नोस्पर्म एंड दी एंजियोस्पर्म। नाउ एंजियोस्पर्म वी आर क्लासीफाइंग इनटू 2 टाइप है। एंजियोस्पर्म में क्या आता है, मोनोकोटिलीडोन एंड डाइकोटिलीडोन। जैसे मैंने बोला, मोनोकोटिलीडोन मतलब जिसके अंदर सिंगल सीड रहते हैं, और डाइकोटिलीडोन मतलब जिसके अंदर मोर देन 1 सीड रहते हैं। तो डिपेंडिंग नंबर ऑफ द सीड्स आई टोल्ड यू कोटिलीडोन्स, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द सीड्स, हाउ मच सीड्स आर देयर, दैट मोर नंबर ऑफ सीड्स और लेस नंबर ऑफ सीड्स, और सिंगल सीड्स और मोर देन 2 सीड्स, दैट वन। नाउ वी विल सी अबाउट द क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टोग्राम वी आर टेलिंग एज एन सर्च फॉर अ पॉन्ड विद द ग्रेनिश फीड्स बोलते ना, अगर सर्च करोगे पॉन्ड, खारी बोलते हैं या ग्रीनिश वाटर बोलते हैं, कलेक्ट सम ग्रीन फाइबर्स, हाँ, ग्रीनी फाइबर्स रहते हैं वो कलेक्ट करो, एंड पुट द फाइबर इन द पेट्री डिश, जस्ट पुट दैट पेट्री डिश बोलते ना, जो पेट्री डिश में वो फाइबर रखो, एंड क्लीन एंड वॉश देम क्लीन विथ वाटर, उसको पूरी तरह वॉश करो। पुट वन ऑफ द पुट वन ऑफ द फाइबर इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर बोलते ना, एक फाइबर को वाटर के ड्रॉप बोलते ना, एक फाइबर पे वाटर ड्रॉप पुट करो, एंड स्प्रेड मीन जस्ट स्प्रेड इन अ सिंगल, बोलते ना स्ट्रेट कर दो, एंड जस्ट स्प्रेड इट। नाउ कवर द स्लीप एंड ऑब्जर्व इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो फाइबर्स रहते हैं, फाइबर एकदम पतले पतले रहते हैं, वेरी वी कैन से वेरी वेरी थिन। तो just put a water, first clean it and then just put in the slides and just observe in the compound microscope. What you will observe, that is spiral type. उसमें स्पाइरल अरेंज रहते हैं, होता है ना एक दूसरे से, होता है ना, इसमें थिन टाइप स्पाइरल टाइप रहते हैं उसके अंदर, लाइक है ना ग्रास कैसी रहती है, दैट यू आर लुकिंग जैसी स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। स्पाइरोग्राम का डायग्राम देख लो उसमें स्पाइरल का। तो यह दैट जो फाइबर स्ट्रेट फाइबर रहते हैं, दिस वी आर टेलिंग, दिस प्लांट ऑफ द प्लांट वी आर टेलिंग स्पाइरोगायरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरोगायरा। सी द 6.1 figure, they given an example of the spirogyra. Cell wall was there, nucleus is there, pyramid is there, all the thing are there. Now we will classify into division. First division is what, Thallophyta. Thallophyta क्या बोलते हैं इसमें, this plant grow mainly in water. This kind of the plant they are growing in water only. This group of plant which do not have specific plants. हाँ, इसके बोलते हैं ना, इसके अंदर वॉट एवर द पार्ट्स, फ्यू ऑफ द सीड पार्ट्स आर नॉट देयर, दैट वी आर टेलिंग, रूट इज नॉट देयर, लीव्स आर नॉट देयर, फ्लावर आर ऑल्सो नॉट देयर, बट विद द हेल्प ऑफ द ऑटोट्रॉफ, विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट, दे आर, वी कैन से दे आर सर्वाइविंग, दे आर मेकिंग देयर ओन फूड्स। तो दिस वी आर टेलिंग एज एन अलगाए, इसको हम लोग बोलते हैं अलगाए, जो काई बोलते हैं हम लोग इसको। नाउ अलगाए वी हैव सीन डाइवर्सिटी, अलगाए ऑल्सो डाइवर्सिटी, अलगाए भी होता है ना डिफरेंट टाइप की रहती है। दे में भी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, ये भी एक सिंगल सेल वाली रहती है और मोर देन 1 सेल वाली रहती है। एंड यू कैन सी इन द माइक्रोस्कोप, हाँ, एंड माइक्रोस्कोपिक और लार्ज, जैसे मैंने बोला एक सिंगल सेल वाली और यूनिसेल्युलर वाली, हाँ, दैट यूनिसेल्युलर यू विल सी इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इन अ माइक्रोस्कोप, बट फ्यू ऑफ द सी आर मोर देन, दे आर कुछ बड़ी ही रहती है, दे आर लिटिल बिट बिगर, मल्टीसेल्युलर, मोर देन 1 सेल। तो एग्जाम्पल ऑफ द अलगे, अलगे वी आर टेलिंग स्पाइरोगायरा, उल्थ्रोसिक्स, ओल्वा, सर्गोजम्स, ओल्वा, जस्ट लुक देयर, चारा दे गिवन, ऑल दिस थिंग्स यू आर लुकिंग इन डे टू डे लाइफ। ये सारी चीज़ें तुम लोग डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करोगे, बट स्पाइरोगायरा को तुम लोग को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना होगा।
sargassum etc. Some of these are found in fresh water, कुछ ऐसे रहते हैं फ्रेश वाटर में मिलेंगे. Few of the you are getting in a saline water, खाड़ी बोलते हैं ना. This plant are usually have a soft and fibered body. देखा नहीं, ये प्लांट कैसे रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, एकदम पतले रहते हैं और फाइबर बॉडी टाइप रहते हैं. And various fungi like yeast we are telling, molds we are telling, which do not have chlorophyll. इसके अंदर chlorophyll भी नहीं रहते. This all are including in the group. ये सारे ग्रुप में आते हैं. Remember. Just look the division. How the figures they given. Ulga, chara they given spiral chloroplast. Spiral chloroplast. Chloroplast means with the help of sunlight they are preparing. मतलब sunlight के थ्रू ये chloroplast में greenery आती है, इसमें याद रखना. Then we are telling as a division 2 Bryophyta. Then they are telling division 3 the Pteridophyta. Then Parograma are coming and Angiosperm coming. So we will discuss tomorrow this one, Bryophyta and the Pteridophyta. I will send the notes of the third chapter now. Fourth chapter, what we did, measurement of the matter. Just complete in your notebook.